Hello everyone, I Monica Sharma from SD College Ambala Kent. In this video, I am going to tell you about the different types of cost. The producer has to use various factors of production. He pays to them for their services. The payment made to the factors of production are known as cost of production. In other words, we can also say that the cost of production means payment made to the factors of production. Cost of production mainly depends on the quantity of output. Generally, the cost of production increases with the increases in output. So we can say that the cost of production is a function of output. There are three types of cost: total cost, average cost, and marginal cost. Total cost is a cost of all resources necessary to produce any particular level of output. Total cost is equals to total fixed cost plus total variable cost. किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है उनके लिए जो हम पेमेंट करते हैं दैट इज़ एन टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज विच आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट. तो टोटल कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है कि जो रिसोर्सेज की हम पेमेंट करते हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं एक पर्टिकुलर आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए. टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट निकलती है. फिक्स्ड कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो हम फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए इंकर करते हैं और वेरिएबल कॉस्ट वो वाली एक्सपेंडिचर होता है जो स्पेंट आउट किया जाता है वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए. तो फिक्स्ड कॉस्ट आर द टोटल एक्सपेंडिचर विच आर इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू परचेज और हायर अ फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. And the variable cost are the cost or expenditure which are incurred by the producer on the use of variable factors of production. जब fixed factor of production को purchase करने के लिए hire करने के लिए producer जितना भी खर्चा करता है जो भी expenditure करता है उसे हम fixed cost कहते हैं. Variable cost variable factors of production के लिए जो भी spent out करता है producer उसे हम variable cost कहते हैं. Fixed cost does not change with the change in quantity of output and it remains the same whether the output is 0 and maximum. But the variable cost change with the change in quantity of output. The cost is 0 when the output is 0. Fixed cost कभी भी output की quantity के साथ change नहीं होती, चाहे output 0 हो या maximum हो. Fixed cost remains the same. Variable cost output की quantity से एक साथ vary होती है. अगर output 0 है तो cost भी 0 होगी. The example of the fixed cost is cost of plant and machinery and wages to the permanent staff, and the example of the variable cost is cost of raw material and wages of casual laborers. In this table we can see that at different levels of output the total fixed cost remains the same. If a producer produces only 1 unit of output then the total fixed cost remains 10, and if a producer produces 0 unit then also the fixed cost remains 10, and if a producer produces 8 units of output then the total fixed cost remains the same, that is rupees 10. So according to this table the fixed cost does not change with the change in level of output. आउटपुट के चेंज होने के साथ फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती. प्रोड्यूसर अगर 0 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है तब भी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी रुपीज 10. अगर वो मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है 8 यूनिट्स तब भी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी रुपीज 10. In this table we can see that the total variable cost vary with the level of output. अगर आउटपुट चेंज हो रहा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो रही है. अगर प्रोड्यूसर 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 ही है. अगर प्रोड्यूसर 8 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 62 रुपीज है. तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल द टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट. अगर आउटपुट का लेवल चेंज होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी. In this diagram we can see that the total fixed cost curve remains the same. Total fixed cost like हमारी रुपीज 10 है, चाहे हम आउटपुट 0 प्रोड्यूस करें चाहे मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहेगी. इसलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट्स द हॉरिजॉन्टल लाइन. कि यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों है, क्योंकि डिफरेंट आउटपुट लेवल्स पे भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहेगी. टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है
टोटल आपके लेवल ऑफ आउटपुट के साथ, अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। एंड TC कर्व शोज द टोटल कॉस्ट। द टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके हमारी टोटल कॉस्ट आती है। नाउ नेक्स्ट इज एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज अ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। पर यूनिट कॉस्ट कितनी होती है उसे हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। तो एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दिस टेबल शोज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जब हम नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके। अगर हम आपकी फिक्स कॉस्ट 10 रुपीज है तो नंबर ऑफ यूनिट इज 1, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आएगी 10। नंबर ऑफ यूनिट है 2 और टोटल फिक्स कॉस्ट है 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 तो एवरेज कॉस्ट आएगी 5। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट को हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को यूनिट्स ऑफ आउटपुट से डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज अगर हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज है और नंबर ऑफ आउटपुट 1 है, 1 यूनिट, तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी 10 डिवाइडेड बाय 1 रुपीज 10। अगर हमारी यूनिट्स 2 यूनिट्स हैं और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 18 है तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी 18 डिवाइडेड बाय 2 9। अगर हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स 8 हैं और हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 62 है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी 62 डिवाइडेड बाय 8 एंड दैट इज इन 7.8। Now next is marginal cost. The marginal cost is the additional cost of producing one more unit of output. मार्जिनल कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को आउटपुट करने से हमारी एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट निकलती है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। In this table we can see that the total cost is 20 and 28, 34, 38, 42, 48, 56 and 72 and units produce are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर एक फर्म 8 यूनिट्स को प्रोड्यूस करती है तो टोटल कॉस्ट है 72। तो और अगर फर्म 1 यूनिट को प्रोड्यूस करती है तो टोटल कॉस्ट है 20। एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने से एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट आती है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। जैसे अगर एक प्रोड्यूसर 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है तो उसकी कॉस्ट है 28। अगर उसने 3 यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं तो उसकी कॉस्ट है 34। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने से उसकी एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट आई है 28 माइनस 34 दैट इज इन 6। नाउ नेक्स्ट अगर वो 4th यूनिट प्रोड्यूस करता है तो किसकी कितनी कॉस्ट आई है दैट इज इन 38। तो 38 माइनस 34 दैट इज इन 4। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने से हमारी एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट आती है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। Thank you so much for listening this video.